did. But who are the Naga Sadhus and what's their significance in Mahakumbh Mela? Naga Sadhus are known for their unique appearances, often with ash-covered bodies and minimal or no clothing. The 8th century Hindu philosopher Adi Shankaracharya introduced the monastery system of warrior class monks and seers known as akhadas. Naga Sadhus belong to these akhadas. Akhadas were established to protect and promote Sanatan Dharma or the Hindu religion, particularly during times of external threats. Historically, Naga Sadhus lived in the Himalayas far from human settlements. They worship Lord Shiva and embody his principles of asceticism and spiritual discipline. During the Mahakumbh Mela, Naga Sadhus are the first to enter the holy waters of Ganga for the Amrit Snan. It is believed that by taking the dip first, they make the water sacred for everyone else. बहुत आनंद आया, अमृत मिला हमको स्नान करके। गुरु महाराजों की दया से, उनकी आशीर्वाद से हमको बहुत आनंद आया। हर हर महादेव। बहुत अति सुंदर आप लोगों को पर्यावरण जो लोगों को प्यार मिल रहा है, ऐसे प्यार मिलता रहे और ऐसी हमें मौका मिलता रहे होने के बहुत बड़े वक्त अघोरी बाबा हर हर महादेव। With drums beating, the Naga Sadhus danced with excitement, filling the air with energy. The passion was infectious and the devotees watched in amazement. Chants of Har Har Mahadev, Jai Shri Ram and Jai Ganga Maiya were reverberating as the devotees took a dip in the icy cold waters. Enthusiasm was on the top. Pilgrims from across the world participated in the Amrit Snan in Mahakumbh. Let's listen in to some of them. It's been a life-changing experience and once-in-a-lifetime experience. I'll never forget this forever. This was amazing experience. This can happen only in India, and this is a great victory of Sanatan Dharma, I can say. And this is lifetime experience. My biggest motivation to come to Kumbh was the fact that this is actually the biggest human gathering on earth, which is very interesting for me. I really enjoyed the parade of Agoris this morning. I really like the experience of the whole event, and I hope everybody is having fun here. The soul of India is here. I like a lot the color of the people is very friendly, and I hope I come back again. I came 6 years ago at this Ardhakum, and I had a very important experience here. And so I've come back to this Mahakumbh Mela because this is a very special opportunity to connect with some energies that you won't get anywhere else. And so I've come here to pay my respects and ask for the blessing to continue my life path. Among the pilgrims was Laureen Powell Jobs, wife of late Apple co-founder Steve Jobs. Here I must share this story. It was February 23, 1974, Steve Jobs' 19th birthday. He wrote a letter to his childhood friend Tim Brown. In the letter, Jobs expressed his desire to attend the Kumbh Mela. He wrote, and I quote, "I wish to go to India for the Kumbh Mela, which starts in April. I will be leaving sometime in March, not really certain yet." He concluded with Shanti. तो गाइस नमस्कार, स्वागत है आपका। और हमने छोटा सा 1-2-3 मिनट का आपको क्लिप चलाया। आपको पता चला होगा इस पर कि महाकुंभ का मेला लगा हुआ है प्रयागराज में गाइस। तो आज हम थोड़ी सी इस पर हिस्ट्री की बात करेंगे। बाकी वीडियो यहाँ पर चलेगा, मैं आपको चला दूंगा, ठीक है, और थोड़ा सा आपको नॉलेज भी मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं टोटल, ठीक है, कि क्या क्या कैसे होता है। कई पौराणिक कथाएं हैं, है ना, कई कथाओं में लिखा हुआ है, कई किंवदंतियों में लिखा हुआ है ना। उसमें बात की गई है कि समुद्र मंथन था, जहाँ पर क्षीर सागर है आकाशीय क्षेत्र के पास, वहाँ समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन कब क्यों हुआ था? एक ऋषि से दुर्वासा ऋषि। अब दुर्वासा ऋषि ने क्या किया, देवताओं और इंद्र को श्राप दे दिया था। अब श्रापित हो गए थे वो, और इससे भयभीत होकर वो विष्णु के पास जाते हैं।
भगवान विष्णु के पास जाते हैं देवता सारे, और भगवान विष्णु जो है समुद्र मंथन का एक तरह से गुणगान करते हैं कि आपको वहाँ से रिलीफ मिलेगा, आराम मिलेगा, और ये दुविधा और ये श्राप आपका खत्म हो जाएगा। समुद्र मंथन कीजिए आप, और वहाँ से अमृत निकलेगा, एक कुंड निकलेगा, एक कलश निकलेगा, उसमें अमृत होगा। तो देवताओं ने क्या किया, समुद्र मंथन किया, और समुद्र मंथन देवता और राक्षसों के बीच में होता है। दोनों तरफ से खींचातानी होती है, और वहाँ पर खींचातानी के बाद वो समुद्र से एक कलश निकलता है जो अमृत से भरा हुआ होता है। गाइस, कथाओं के अनुसार और बड़े बड़े वैज्ञानिक और इतिहासकार भी मानते हैं इस चीज़ को, क्योंकि दुनिया भर से लोग, श्रद्धालु लोग, पर्यटक वगैरह और बड़े बड़े हमारे जो संत हैं, महात्मा हैं, अघोरी बाबा हैं, वो सब वहाँ पर प्रयागराज में आज पूरी तरह से जमा हैं। इतना बड़ा मेला, दुनिया का सबसे बड़ा मेला, महाकुंभ मेला, जिसको कहा गया है कि 144 साल बाद ये यहाँ पर लगा हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ है गाइस। तो सबसे बड़ा पॉइंट है कि फर्स्ट टाइम यहाँ ऑर्गेनाइज हुआ है, पहली बार 144 साल बाद। वैसे तो 12 साल बाद आता है, कोई अर्ध कुंभ 6 साल बाद भी आता है, मिनी कुंभ भी होते हैं जो 1 साल बाद आता है। तो ऋषि दुर्वासा के श्राप से मुक्त होने के लिए ये काम किया गया था, और देवताओं ने और राक्षसों के बीच में जब वो कलश समुद्र मंथन के द्वारा कलश आता है तो उसमें अमृत होता है। कहते हैं कि वो अमृत को धन्वंतरी अचानक लेके प्रकट हुए। किसी कथा के अनुसार धन्वंतरी होते हैं, कोई कहता है इंद्र के बेटे जयंत थे जो उस कलश को लेकर भाग गए थे गाइस। अब कलश को लेकर भाग गए, लेकिन इशारा मिल गया था देवताओं का कि जयंत बस कलश लेके भागो फटाफट, अगर ये इनके हाथ में लग गया राक्षसों के तो ये पी जाएंगे, अमर हो जाएंगे। तो जयंत ने एकदम अपनी नीति से, सूझ नीति से उस कलश को लेकर वो भाग गए, लेकिन राक्षसों ने उसे पकड़ लिया और अमृत को छीना झपटी में, और वहाँ कलश से कुछ बूंदें जो है 4 जगह गिर जाती है, 4 स्थानों पे गिर जाती हैं, क्योंकि 12 स्थानों में अमृत की बूंदें गिरी। इनमें से 8 स्थान देवलोक में है और 4 स्थान आपके पृथ्वीलोक में है। ठीक है, याद रखना है। 12 स्थान पे गिरी थी, लेकिन 8 लोक में, मतलब 8 जो बूंदें थी वो कहाँ पर, देवलोक में, और 4 बूंदें पृथ्वीलोक पे गिरी। और पृथ्वीलोक में कहाँ कहाँ गिरी, प्रयागराज, हरिद्वार और उज्जैन, नासिक, इन 4 जगहों पे गिरी थी। इसलिए वहां पर क्या मनाया जाता है, आपका कुंभ मेला लगता है 12 साल, क्योंकि देवताओं के अनुसार 12 साल जो हैं, 12 साल में एक दिन होता है, तो 12 दिन हो गए, है ना। तो 12 दिन उनके अनुसार होते हैं देवताओं के अनुसार, लेकिन पृथ्वीवासी अनुसार क्या होते हैं, एक साल में 365 दिन, है ना। 12 साल में मल्टीप्लाई कर लीजिए, इतने दिनों बाद क्या होता है, इतने सालों बाद कुंभ मेला जो है लगता है। तो 144 का मतलब 12 कुंभ मेलाओं के बाद ये महाकुंभ लगा है। तो बहुत एक अच्छी स्टोरीज यहाँ पर मैंने आपको बताई। महर्षि जो दुर्वासा ऋषि थे, उन्होंने जो है श्राप दे दिया था, उस कारण ये बात हुई। और बाकी कुछ कहते हैं कि धन्वंतरी जो है कलश लेकर प्रकट हुए थे, और उस बीच में क्या होता है, तानातानी होती है, और वहां पर जो है राक्षसों को क्या होता है, युद्ध हो जाता है, और इस तरह से जो है कुंभ मेले की जो है वहां पर नींव बढ़ जाती है गाइस। ठीक है, तो अपने स्थानों से मतलब धीरे धीरे जो है आगे बढ़ता गया। आयोजन की तिथि कैसे निर्धारित होती है, कुंभ मेले में क्या है गाइस, सूर्य और बृहस्पति का खास योगदान माना जाता है, और सूर्य और बृहस्पति का जो मिलाप है वो 4 प्रकार से, प्रयागराज, आपका नासिक, उज्जैन और आपका ये हरिद्वार, ये 4 जगह हैं। यहाँ पर चारों जगह में राशि के हिसाब से जो है वहाँ पर अपने अपने डिवाइड कर दिया गया है कि कौन सा सबसे पहले लगेगा। पहला क्या है, प्रयागराज में लगता है, दूसरा हरिद्वार में लगता है, तीसरा उज्जैन में, और 4th नासिक में। ये सीक्वेंसेस वाइज जो है लगाया जाता है। तो एक छोटी सी क्लिप मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, आप देखिए इसको। स्थान पृथ्वी लोक पर स्थित है हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। यही वह पवित्र स्थान है जहां अमृत की बूंदों के कारण कुंभ मेले का आयोजन शुरू हुआ। लेकिन कहानी का सबसे अहम हिस्सा अभी बाकी है, जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। श्रीमद् भागवत पुराण के सागर 6 प्रसंग में कुंभ विवरण के अनुसार सागर के 14 रत्न निकले थे, जिनमें सबसे पहले हलाहल या कालकूट विष निकला। इस विष की ज्वाला इतनी तीव्र थी कि सभी देवता और दानव इससे जलने लगे थे। तब भगवान शिव ने देवता, दानव और समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए इसे खुद पी लिया। विष की तीव्र जलन के कारण शिव जी का कंठ नीला पड़ गया
इसीलिए शिवजी का एक नाम नीलकंठ पड़ा। विष की ज्वाला को कम करने के लिए सभी देवताओं और दानवों ने शिवजी को शीतल जल चढ़ाया। इसके बाद उनके शरीर का ताप और जलन कम हुआ। यही कारण है कि सावन में शिवजी का जलाभिषेक किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब शिवजी ने समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को ग्रहण किया तो उसकी कुछ बूंदें धरती पर गिर गईं। जिन घास की पत्तियों पर ये बूंदें गिरी उन्हें सांप ने चाट लिया, जिससे सांप की जीभ बीच से कट गई। वहीं कुछ विष की बूंदों को बिच्छुओं और अन्य विषैले जीवों ने भी ग्रहण कर लिया। इसी कारण ये जीव जहरीले हो गए। इसके बाद कामधेनु, कल्पवृक्ष, कौस्तुभमणि, उच्चैश्रवा अश्व, ऐरावत गज, रंभा अप्सरा, सुरा, लक्ष्मी, चंद्रमा, शार्गंधनुष, भगवान धन्वंतरी, पांचजन्य शंख और अमृत कुंभ निकला, जिसे विश्व मोहिनी बने भगवान विष्णु ने देवताओं को पिला दिया। इसकी बूंदें हरिद्वार की गंगा नदी, प्रयागराज के त्रिवेणी संगम, गंगा, यमुना और सरस्वती, उज्जैन की क्षिप्रा नदी और नासिक की गोदावरी नदी में गिरी। जहां अमृत की बूंदें गिरी वहां कुंभ मेले का आयोजन शुरू हुआ। 2 मिनट की वीडियो में आपने ये झलक देखी होगी, ठीक है गाइस। और हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि 4 स्थान तो आपको बताए गए कि 4 जो है स्थान पर कुंभ मेला जो है आज की डेट में यहाँ लगता है। और जो 8 स्थान थे वो आपके कहाँ पर है, देवलोक में, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हैं इम्पोर्टेंट, क्योंकि इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये मुद्दा चल रहा है हमारे हिंदुस्तान में, बहुत बढ़िया है। 8 स्थान कहाँ है, देवलोक में गाइस, ठीक है। देवलोक में 8 स्थान पे गए थे और 4 लोग पृथ्वी लोक पे गए। ये सब कथाओं में है, ये याद रखना है, ठीक है। कोई विश्वास करें न करें, क्योंकि लेकिन आज पूरी तरह से प्रयागराज में भारत की धरती पर हलचल मची हुई है ना। धर्म, सब धर्म की गाथा में लगे हुए हैं, एक हिंदुत्व की गाथा में लगे हुए सभी के सभी जने। बात आती है अगर इसके साक्षी की बात करें 7th सेंचुरी में गाइस क्या हुआ। 7th सेंचुरी में हर्षवर्धन के काल में, उस समय हर्षवर्धन का काल था, ठीक है। हिस्ट्री में पढ़ते हैं हम लोग हर्षवर्धन की कहानी। तो हर्षवर्धन की जो टेन्योर था माना जाता है 622 BC AD से लेकर 647 तक हर्षवर्धन का टाइम होता है। और उस समय हर्षवर्धन के समय पर हेनसांग जो है चीन यात्री होता है, हेनसांग एक चीन यात्री होता है, वो इसका डिस्क्रिप्शन करता है। हेनसांग ने कहा कि प्रयागराज में हिंदुत्व का सबसे पवित्र स्थान है, मतलब स्थान है, सबसे पवित्र स्थल है, सबसे पवित्र स्थान है, ठीक है। और वो है त्रिवेणी। और त्रिवेणी का मतलब हो गया कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर्स, गंगा, यमुना, सरस्वती, ठीक है। गंगा, यमुना, सरस्वती तो अब नहीं दिख रही है आज की डेट में। पहले सरस्वती का एक वहाँ पर क्या था, प्रेजेंस रहती थी सरस्वती रिवर की, लेकिन सरस्वती रिवर अब सूख चुकी है। तो गंगा, यमुना, सरस्वती, त्रिवेणी कहते थे। ये हर्षवर्धन के समय की बात है, हेनसांग ने इसका डिस्क्राइब किया है। अब 8th सेंचुरी की बात करें कि 8th सेंचुरी में शंकराचार्य जी ने, ठीक है, 8th सेंचुरी में शंकराचार्य जो हमारे धार्मिक गुरु रहे शंकराचार्य, और इनके जो शिष्य हैं, जो पुपिल्स हैं, सर श्वेतराचार्य, इन्होंने भी क्या बोला है कि हाँ ये बात सत्य है। और यहाँ पर प्रयागराज में, उज्जैन में, नासिक में, हरिद्वार में ये जो 4 बूंदें गिरी हैं अमृत कलश से, वो बातें जो हैं बिल्कुल सटीक प्रमाणिक मानी जाती हैं, ठीक है। लेकिन साइंस जो है कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब एक कथाएं हैं, पौराणिक कथाएं हैं, किंवदंती हैं, कहानियां हैं, और सब दुनिया इसी पे चल रही है। लेकिन एक श्रद्धा जो रखेगा, डेडिकेशन जो रखेगा, वो मुझे लगता है उसके लिए साक्ष्य की कोई मतलब प्रमाण जरूरत नहीं पड़ेगी गाइस,
ठीक है। तो संगम तट पर बात की गई थी यहाँ पर इन्होंने कि ऐसे ऐसे यहाँ पर ये हो जाएगा। तो कुंभ के आयोजन की तिथि भी निर्धारित की थी कि कुंभ मेले में सूर्य और बृहस्पति का खास योगदान माना जाता है गाइस, है ना। जब सूर्य बृहस्पति एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तभी क्या होता है, कुंभ मेले का जो है आयोजन किया जाता है। ठीक है, ये सूर्य और बृहस्पति जो है इनकी कहानी यहाँ पर रखी गई है और इसी के बिहाफ पर जो है 4 स्थान को डिस्क्राइब कर दिया गया है। तो वो 4 स्थान मैं आपको बता देता हूँ। पहला क्या है, जब बृहस्पति वृषभ राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य मकर राशि में, तब कुंभ का आयोजन प्रयागराज में किया जाता है। सेकंड होता है जब सूर्य मेष राशि और बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं तब कुंभ मेले का आयोजन हरिद्वार में किया जाता है। और तीसरा जो है, जब सूर्य बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करते हैं तब महाकुंभ नासिक में मनाया जाता है। और चौथा है, जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं तो वहां पर कुंभ मेला उज्जैन में लगाया जाता है। तो इस तरह से राशियों के हिसाब से ना सूर्य और बृहस्पति की यहाँ पर छोटी सी कहानी आप लिख सकते हैं, सूर्य और बृहस्पति। ठीक है, सूर्य और बृहस्पति का भी ज्यादा से ज्यादा योगदान यहाँ पर देखने को मिलेगा महाकुंभ के अंदर का। ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना रहा क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं देखते, लगभग 20 मिनट का होगा ये वीडियो, तो आप इसको देख सकते हैं। मैं सटीक पॉइंट ही लेके आ रहा हूँ, याद रखना है 4000 एकड़ में ये जो है मनाया जा रहा है गाइस। ठीक है, लगभग प्रयागराज में ये 4000 एकड़ में मनाया जा रहा है ये कुंभ का मेला। और इस मेले में 5 फरवरी को दस्तक देंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और 10 फरवरी को प्रेसिडेंट भी पहुंचेंगे। ठीक है, काफ़ी मान्यता है कि भाई जो यहाँ डुबकी लगाएगा तो वो तो समझो उसकी नैया पार हो जाएगी। ये सब कथाओं के अनुसार है कि भाई गंगा जल ग्रहण करना, मतलब यहाँ गंगा जल को मतलब पीना या नहाना, इसमें स्नान करना एक शुभ माना गया है। ठीक है, स्नान करना एक शुभ माना गया है कि यहाँ पर आप बात कर लीजिए, नहा लीजिए और आप जो है पुण्य आत्मा, मतलब पुण्य आपकी आत्मा जो है तृप्त हो जाएंगी, ऐसा कहा गया है। इसलिए बड़े बड़े पॉलिटिशियन यहाँ पे आपको दिखने को मिल रहे हैं, आने को मिल रहे हैं। साथ में बॉलीवुड एक्टर भी यहाँ पे दिखने को आपको मिल रहे हैं, है ना। पॉलिटिशियन, बॉलीवुड और आपके कॉमन मैन जो बेचारे भर भर के ट्रेनों में पहुंच रहे हैं, मैन एंड वुमेन, वो भी आपको देखने को मिल रहे हैं। डेली समाचार के माध्यम से इतना डेडिकेशन, इतनी श्रद्धा है यहाँ के लोगों के अंदर कि वो उस धरती पर उतर कर वहाँ गंगा में स्नान करना चाहते हैं। और यही कहलाता है इनके लिए महाकुंभ का मेला, जो 144 साल बाद लगाया गया है, वहाँ पर आयोजन किया गया है प्रयागराज में। सोचिए, लोग 15-15 किलोमीटर तक पैदल चल रहे हैं। प्रयागराज स्टेशन उतर कर गाइस, प्रयागराज स्टेशन पर उतर कर यहाँ से उस मेले के लिए वो लोग 15 किलोमीटर चल रहे हैं। अब 15 किलोमीटर जब वापस आएंगे फिर 15 किलोमीटर। आप सोचिए 30 किलोमीटर जो पैदल चल रहे हैं वही प्रयागराज जाने की सोच ले और अपना जो आप सोचते हो तृप्त हो जाएंगे। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, क्योंकि श्रद्धा से जाओगे तो बिल्कुल होगा। घूमने से और इधर उधर मौज मस्ती के तौर से जा रहे हो, है ना, कि हम तो वैसे ही दिखाते हैं क्या है क्या नहीं है, तो फिर वो आपका कोई वहाँ पर ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है इस चीज़ का। तो याद रखना है, श्रद्धा से जाएंगे तो बिल्कुल आत्मा तृप्त होंगी, आपका बॉडी तृप्त होगा, आपके जो कन्फ्यूजन है, आपके जो घर में कलेश है, समस्याएं हैं, वो सारी दूर हो जाएंगी। अघोरी बाबा हैं वहाँ पर, है ना, मॉन्क्स हैं, नन्स हैं, कई सारे संत महात्मा जोगन वहाँ पर हैं। और जो लोग वहाँ पर जा रहे हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। रील्स में आप देख रहे होंगे, मीडिया पे देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, भरमार वीडियोस पड़े हुए हैं। तो वो सारी चीज़ें आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। प्रॉब्लम है वहाँ के लोगों से अगर बात करेंगे तो आप वो कह रहे हैं कि एक शेड थी, अब शेड भी नहीं दी गई है। मतलब शेड का मतलब जिसके नीचे लोग ठहर सकें, चाय पानी नाश्ता कर सकें, वो समस्याएं थोड़ी बहुत वहाँ दिख रही हैं लोगों को, जो मीडिया के थ्रू वो बात की गई है। लेकिन देखा जाए, अब आप देखिए टोटल जो अनुमान लगाया है 40 करोड़ का लगाया है, ठीक है, और लगभग 8 से 10 करोड़ तो वहाँ पर जा चुके हैं गाइस। बाकी आप देख सकते हैं 30 करोड़ के आने की संभावना है। मतलब टोटल जो वहाँ के प्रशासनिक हैं, व्यवस्थाओं में जो लगे हुए हैं, अनुमान लगाया गया है कि दुनिया भर से 40 करोड़ जो हैं संत महात्मा
और कॉमन मैन का आने का वहाँ पर पूरी तरह से क्या है प्लान है, और लगभग 8 से 10 करोड़ वहाँ पर ऑलरेडी जा चुके हैं। और आने के सब मतलब जो प्रचलन है वो चलता रहेगा लगभग 26 फरवरी तक। याद रखना है, ये लोहड़ी से, जो लोहड़ी आया था, लोहड़ी से मनाया जा रहा है 13 जनवरी से, लगभग 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक, शिवरात्रि तक ये चलेगा, ये याद रखना है, ठीक है। इतने दिन तक ये आपका महाकुंभ चलेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पीक टाइम पे जा रहे हो तो आप जो है आप लास्ट टाइम में भी जा सकते हो, थोड़ी भीड़ कम हो जाएगी तो आपको थोड़ा सा आपको रिलैक्स मिल जाएगा और अपना परिवार के साथ आप आना जाना मतलब एक तरह से आसानी रहेगी एक तरह से आपकी, ठीक है। आज तक आप देखिए सेकंड एसी में, थर्ड एसी में भी जगह नहीं मिल रही है, लोग टिकट भी नहीं कलेक्ट कर पा रहे, रिजर्वेशन भी नहीं हो पा रहा है। बस एक चाहत है कि उस धरती को चूमना है और वहाँ पर स्नान करना है, ऐसे हमारे भारतीयों के अंदर एक फीलिंग्स जग रही हैं गाइस। तो एक ग्रेट फीलिंग्स हैं, इसके लिए हम सब तैयार हैं, है ना। लेकिन प्लान बनेगा तो हम पीक पे तो नहीं जा रहे, जाएंगे तो लास्ट टाइम जब मिड फेब के बाद ही प्लान करेंगे। कुछ लोग हमारे कलीग, हमारे साथ के लोग, है ना, तो तभी थोड़ा पॉसिबल होगा। भीड़ ज़्यादा जो होगी वो नहीं रहेगी वहाँ पर, और आराम से आप दर्शन भी कर सकते हो गंगा त्रिवेणी के, गंगा जमुना सरस्वती वहाँ पर, और वहाँ पर अपनी डुबकी लगा सकते हो। कई कथाओं में सारी बातें लिखी हुई हैं, बस मैं तो शॉर्ट वीडियो बनाया है कि भाई भरमार है, आस्थाएं अगर आपके अंदर है, श्रद्धा आपके अंदर है, भक्ति की भावना आपके अंदर है, तो प्रभु तो आपको घर पे भी मिल जाएंगे और आपको वहाँ भी मिल जाएंगे। आप जहाँ मेडिटेशन में अपने आप को बस इन्वॉल्व कर लो, वहीं ईश्वर आपको प्राप्त हो सकते हैं। भटकाऊ स्थिति तो हर जगह, आप अमेरिका चले जाओ, आप अमरनाथ यात्रा कर लो, आप वैष्णो देवी यात्रा कर लो, आप कहाँ भी मतलब यात्रा वो करते हैं जो बोल चुके होते हैं कि यार मेरा ये काम बन जाए तो वो यात्रा करूँगा। तो इस वजह से क्या है, लोग देखा तो नहीं कॉपी कर लेते हैं, तो वो काम करने लग जाते हैं, उनके काम बनते हैं, लोग श्रद्धा बनती जाती है और कंटिन्यूस श्रद्धा बनती जाती है, तो वो उस फील्ड में ज्वाइन कर लेते हैं। अच्छा फील्ड है, कोई इसमें गलत नहीं है, बस ज्वाइन करो, श्रद्धा के साथ ज्वाइन करो, है ना। वहाँ मेडिटेशन करो, भजन करो, कीर्तन करो, है ना, गुणगान करो उस प्रभु का जिसने ये शरीर दिया है, और ये शरीर हमने धारण किया है। किसके लिए धारण किया है? कुछ काम करने के लिए धारण किया है ना। तो इंसान का रूप हमारे अंदर है, एक आत्मा है हमारे अंदर, पवित्र आत्मा है ना। उसके ज़रिए से हम पूरे संसार को देख रहे हैं, भाप रहे हैं और एक्सपीरियंस भी काउंट कर रहे हैं। जहाँ हो सकता है अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करने से हमें शांति मिलेगी, अंदर से शांति मिलेगी। बुरे कर्मों से बचिए, है ना। किसी का अगर आप भला नहीं कर रहे हो तो उसकी बुराई भी ना करो, कोशिश करो सही काम करने की, सही रास्ता दिखाने की सभी को। तो ईश्वर आपकी हर पल मदद करेगा, हर पल आपको साथ, ऐसा लगेगा मेरे साथ मेरे ईश्वर हैं, आपको बचा रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। तो मैं ये नहीं कहता कि आप तट पे ना जाओ, आप घाट पे ना जाओ, आप मंदिर मत जाओ, आज मस्जिद मत जाओ। जिसके काम बन रहे हैं, जिसके लिए बन रहे हैं और जिसके कारण बने हैं, आप बिल्कुल वहाँ जाइए और अपना पूरे तप के साथ तपस्या में लग जाइए और अपने को, अपने परिवार को इस मुसीबत से बाहर ले जाकर मतलब अपने को अच्छा फिट कीजिए गाइस। तो यही मैं आपको इस प्रयागराज महाकुंभ की छोटी सी मैंने आपको बताया है, ठीक है। अच्छा लगे शेयर करना, लाइक करना गाइस, ठीक है। टाइम का थोड़ा पंक्चुअल रहता है ना, तो मैं और एक्सटेंड कर दूँ इस वीडियोस को, लेकिन थोड़ा सा टाइम था, जितना था मैंने आपको यहाँ बता दिया है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।